हेलो गाइस, जय भीम टू यू ऑल। वैंकूवर में एक जमावट जो हो गई है लोगों की, देख रहे हैं आप। कल से सिंपोजियम शुरू होना है और उसके पहले सारे डेलीगेट्स आ चुके हैं कनाडा के अलग अलग हिस्सों से, लंदन से और तमाम जगहों से। विद्या जी हैं जो इनकी टीम होस्ट कर रही है। अशोक जी, सबसे पहले आपको और आपके व्यूअर्स को हमारी तरफ से जय भीम, नमो बुधाय। और जो स्टीयरिंग कमेटी है हमारी, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन इमेंसिपेशन एंड इक्वालिटी डे की प्लानिंग की है। मेरे साथ मेरे को चेयर हैं परमकांत, इसके साथ मैं भी को चेयर हूँ, और हमारी टीम के सभी मेंबर जो है पहुँचे हैं। तो कल को जैसे आपने बताया सेशन फॉर्मली शुरू हो रहा है हमारी तरफ से, तो एक हफ़्ता हो गया है शुरू हुए। तो आज हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आज जब हम शुरू कर रहे हैं, हमारे में ऑनरेबल डॉक्टर राजरतन अंबेडकर जी आए हैं। तो हम आपका वेलकम करते हैं। करा दीजिए। मैं करवाता हूँ इंट्रोडक्शन बाद में करवाते हैं। तो थोड़े मैसेज ला लेते हैं। जी। तो साथ ही हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि हमारे जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारी सिस्टर प्रोविंस के साथ अल्बर्टा में, तो मिसेस लीला अहीर जी आए हैं। उनके हस्बैंड जी साथ हैं, पार्टनर मलकीत अहीर, थैंक यू। एंड इंग्लैंड से अपने आए हैं ब्रदर हरवंश लाल वर्दी जी। और इंडिया से हमारे हेमंत सूते जी आए हैं। और टोरंटो से अपने महेंद्र सलन जी आए हैं। हाँ जी। और हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं, हम उनकी बाद में इंट्रोडक्शन करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं, मिसेस लीला, मैं मिसेस बोलूँ या मिसेस या मिस, कैसे? यू आल्सो लुक लाइक मिस। I'm your sister. Your sister, any way I want. Okay, good. With love, then I will answer you. Wonderful. Well, it's an honor, it's our pleasure to have you and Malkeet join us. Would you please do the honors for us and share your greetings and welcomes to the organizers as well as to all the delegates. Leela Ahir. Thank you so much. And thank you, JG, for this beautiful invitation and to sit with my sisters and brothers here to be able to speak about emancipation and about Equality Day. There's an incredible importance, and congratulations to the BC government for acknowledging this really important day. It's now time to really work with our federal counterparts to make sure that Canada understands the importance of that. Equality impacts all of us, and thank you so much, G, for being here. We're very honored to be able to have you and to be able to honor your grandfather in this way. He's such a hero to so many of us for all of the work that he did. But when you look at the importance of that word, of equality, it goes so much beyond caste and beyond our own cultures and into the importance of safety and the ability for people to live equally here in this beautiful country that we live in. This is a very young country. And in a country like Canada, we have no excuse to not live under equality. So we look really forward to the symposium. Thank you so much. I'm really honored to be able to speak on behalf of my province and also on behalf of all of my sisters and brothers who are here who are making humongous changes, not only here in Canada, but also to our families back in India. So thank you so much. It's a true pleasure. Thank you. Yeah. Thank you so much, Leela ji. What a wonderful message. And what I'm also seeing is this is another wonderful opportunities for us to strengthen our partnership, right? So that we've been working in British Columbia, in this province. Now we have champions in Alberta, right? And if we can have both provinces working together, tomorrow we'll have delegates coming from Ontario. We already have members from the steering committee who are from Ontario, from Toronto, and they're with us. I think we're going to be able to create a national movement, which will feed into the international movement. Now, I would also like to request our honorable guest, Dr. Rajratan Ambedkar ji, to say a few words about the upcoming symposium. Dr. Rajratan is a well-read person. He's also a very strong advocate. He believes in transformation, utilizing the teachings of Buddhism as taught to us, as brought to us through the lens of Baba Sahib Dr. Ambedkar.
Dr. Rajaratan ji, welcome. It will be our pleasure to hear your words of welcome. Jai Bhim, Namo Buddhaya, and I'm really thankful to AICS, Chetana Association, all the steering committee for inviting me to this symposium which is based on emancipation and equality. मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में इसे फॉलो करेंगे, देखेंगे। तो मैं भारत के लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में। ये भारत के हर अम्बेडकरवादी के लिए, बौद्ध के लिए गर्व की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक विचार संगोष्ठी, सिंपोजियम को हम शायद से हिंदी में वही कहेंगे, बाबा साहब के विचार मंथन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में होने जा रहा है। ये हर भारतीय के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आप लोग सोल्यूशन निकालने का, और वी होपफुल कि यहाँ थिंक टैंक है और एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छी सॉल्यूशंस निकलेगी। अशोक जी, आप अभी मीडिया से हैं और आज आपकी इंटरव्यू शेर पंजाब रेडियो में थी, तो मैं चाहूँगा कि आप भी क्योंकि आप एक मीडिया पर्सनालिटी नहीं हो, आप एक्टिविस्ट भी हो, तो मैं चाहूँगा कि एज अ स्कॉलर, एज एन एक्टिविस्ट, एज अ जर्नलिस्ट, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, और फिर मैं बाद में रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे जो को चेयर हैं परम, उनके भी विचार लीजिए। अपनी माइक दूसरों के हाथ में देख के अच्छा लगता है, जब अपनी माइक लेके कोई दूसरा सवाल पूछे, है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ आराम है। हाँ, निश्चित तौर पे देखो, आप समस्याओं की बात, तो प्रॉब्लम्स की बात हमेशा होती रहती है, लेकिन अभी हम लोग इकट्ठा हुए हैं सॉल्यूशन के लिए, और अब इतने साल हो गए प्रॉब्लम्स पे बात करते हुए, अब सॉल्यूशन पे बात करना है, और सॉल्यूशन का रोड मैप क्या हो, उस सॉल्यूशन को जो निकले उसको कैसे हासिल किया जाए, उस पर बात करना ज़रूरी है। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं किसी और के पास आऊँगा। परमजीत जी, आप बताएं। जे बाबा साहब का जो मिशन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए 25-30 साल से पहले लगे हुए हैं, उसका ही ये अवेयरनेस हुआ है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं जी। और कनाडा, अमेरिका और इंडिया में कैसे कास्टिज़म पे बात हो रहा है, इक्वालिटी की बात हो रहा है। जया जी बहुत लॉन्ग टाइम से लगे हुए हैं यहाँ वैंकूवर में, कनाडा में, तो उसी का वजह है कि आज जो आई थिंक वैंकूवर, जहाँ नॉर्थ अमेरिका में जो बच्चा है वो बाबा साहब को जानने लगा है, उनका जो मिशन है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब इतने सारे लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आके बैठते हैं, तो आपस में जब बातें होती है तो अलग अलग जगहों की अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं, तो जो एक्सचेंज होता है ना, जो विचार हैं उनका जो आदान प्रदान होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज जी, फ्यू वर्ड्स। हाँ, जय भीम टू ऑल। जैसे परम भाई ने कहा है कि 2003 में पहली बार ये संगोष्ठी हुई थी, मैं उस इतिहास का साक्षी हूँ। मैं भी आया था उस वक्त, और जब 20 साल पहले आया था और 20 साल के बाद में भी आया, इस अंतराल में हमारा जो भाईचारा बढ़ा है। जैसे पंजाबी कम्युनिटी में बिल्कुल नहीं जानता था उस वक्त, लेकिन इस 20 साल में हमारा काफ़ी संबंध हुए हैं, हम काफ़ी आगे बढ़े और साथ मिलकर हमने काफ़ी काम किया है और इसके बाद भी काम करेंगे। थैंक यू। आनंद बाली जी आए हैं टोरंटो से। सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बीइंग पार्ट ऑफ स्टीयरिंग कमेटी, और वेलकम टू ऑल द गेस्ट, and we are very excited that this is going to be very powerful educational awareness symposium going to happen, and I'm sure we will take this moment to the next level. Thank you. सबसे सीनियर लोगों में बात करूं तो सर हैं, लंदन से आए हैं। आपने आंदोलन को बहुत लंबे समय से देखा है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपसे मेरी बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि 9 साल के थे जब आपने बाबा साहब को समझ लिया था। नहीं, बाबा साहब का नाम सुना 9 था, मतलब में, जी, लेकिन 20 साल की उम्र में लंदन में, तो 30-40 साल, 30 साल, 50 साल पूरे, 50 साल हो गए। सोल्यूशन की बात हो रही है, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, किस सोल्यूशन की ज़रूरत है? हरबंस, देखो, भारत में बाबा साहब ने भी कहा है कि आप भारत की प्रोग्रेस के बारे में किसी भी एंगल से देखो तो सबसे बड़ा जो मॉन्स्टर है वो जातिवाद है। और बाबा साहब ने ये भी कहा है कि भारतीय लोग जहाँ पर भी जाते हैं, जे अपनी बुराइयाँ को अगर शिप पूरा भर के नहीं ले जा सकते तो सूटकेस में ले जाते हैं। तो वो एक जातिवाद है। तो जिस भी देश में वे गए हैं, ये जातिवाद का जो कैंसर है उसको साथ लेकर गए हैं। तो सबसे बड़ा देखो, अब साउथ अफ्रीका में जो वहाँ के हबशी लोगों के साथ वितकरा होता था,
तब तक वो ख़त्म नहीं हुआ जब तक दुनिया के दूसरे देशों ने उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई। तो इसी तरह भारत में ये जो हिंदू धर्म के तरफ से जो कैंसर या कोड कह लो दिया है, जब तक दूसरे देश इसके लिए आगे नहीं आते तब तक ये ख़त्म होने वाला नहीं है। कि जैसा बाबा साहब ने कहा, ये एक मॉन्स्टर है भारत की तरक्की के लिए। किसी भी तरह देखो, ये रास्ते में एक मॉन्स्टर बन जी के जी, तो उपाय निकालना जरूरी है। और मैं प्रीत से कहूँगा एक बार कैमरा रोल कर दें, सब कोई आ जाए कम से कम कैमरे में। ये तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठा हो रखे हैं इसके लिए। और कल से सेशन शुरू है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कहाँ गए हैं बाल जी? तो हम लगातार नई नई चीज़ें जो इस संगोष्ठी से निकल के आनी है उस पर डिस्कशन होगा, और तमाम अलग अलग लोगों की हम कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू भी पहुंचा सके। और जो डिफरेंट टाइप के आपने लोगों को इकट्ठा करा है, जैसे लीला जी हो गई, या फिर एक और लेडी आ रही हैं, सी इज जज एंड क्या नाम है उनका? जज नीतू बदन स्मिथ, हाँ, तो ये वो आ गई हैं। आ गई हैं। तो अलग अलग तरह के लोगों को इकट्ठा किया गया है, अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों को इकट्ठा किया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि नई चीज़ निकलेगी, नई राह दिखाई देगी और सॉल्यूशन पे बात होगी। आप देखते रहिए दिल्ली दस्तक।